Dear brothers and sisters, it's a joy to see you today. प्रिय भाइयों बहन, ये बड़े आनंद की बात है आज आपको देखना। Today we are going to meditate from Psalm 18:19. भजन संहिता 18-19 पर आज हम मनन करेंगे। Here David cried out to the Lord saying, "The Lord brought me into a broad place." यहाँ दाऊद कहता है, और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। He rescued me because he was pleased with me and delighted in me. उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। Why David says so? क्यों यहाँ पर दाऊद ऐसा लिखता है? As in the previous verse it says, he had strong enemy and many hated him. जबकि इसके पहले वचन में दाऊद लिखता है कि उसके शत्रु उससे बलवंत है और उससे घृणा करते हैं। He says they were too mighty for me. और कहता है कि वो मुझसे अधिक सामर्थी हैं। And in the 20th verse he said, "The Lord dealt with me according to my righteousness." और 20वें वचन में कहता है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। According to the cleanness of my hands, he rewarded me. और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। The Lord rescued David because the Lord was pleased with David. परमेश्वर ने दाऊद को छुड़ाया क्योंकि वह उससे प्रसन्न था। David was a man after God's own heart. दाऊद तो परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति था। The Bible says in Psalm 37:23, भजन संहिता 37:23 में बाइबल कहती है, "The steps of a good man are ordered by the Lord, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है and the Lord delights in his way." और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। Yes, when we lead a righteous life, the Lord will be pleased with us to rescue us. हाँ, परमेश्वर तो हमें छुड़ाने से आनंदित होगा जब हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं। And again in Psalm 18:36, David said, "You enlarge my steps under me." और फिर भजन संहिता 18:36 में दाऊद कहता है, तूने मेरे पैरों के लिए चौड़ा स्थान कर दिया And my feet did not slip. और मेरे पैर नहीं फिसले। Yes, the steps of a righteous person are ordered by the Lord. परमेश्वर के द्वारा ही एक धर्मी पुरुष के चाल चलन चलाए जाते The हैं righteous man never falls down. और एक धर्मी पुरुष कभी नीचे नहीं गिरता। David was hiding from Saul, his enemy, for a long time, for more than 10 years. 10 वर्ष और उससे अधिक समय से दाऊद तो अपने दुश्मन शाऊल से छुपा हुआ था। During this time, David was living in the wilderness. और दाऊद इस समय में जंगलों में रहा करता। But the Lord rescued him from this difficult life in the wilderness. लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसे चुनौती के स्थान से छुड़ौती दिया। The Lord rescued him from all his enemies. उसके सारे दुश्मनों से उसे छुड़ाया। Here David said, "The Lord rescued me and brought me to a broad place." यहाँ दाऊद कहता है कि उसने मुझे छुड़ाया है और चौड़े स्थान पर मुझे लेकर आया। Here the broad place refers to a place of freedom. और यहाँ पर ये चौड़ा स्थान जो है आजादी के स्थान को दिखाता The है। Lord gave David freedom and he was no longer confined in danger. यहाँ परमेश्वर ने दाऊद को छुटकारा दिया और वो खतरों से घिरा हुआ नहीं है। Today God has given us the Spirit of God so that we can also enjoy freedom from God. आज परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमें दिया है ताकि हम भी अपनी आजादी का आनंद ले सके। The Bible clearly says, as in 2 Corinthians 3:17, where the Spirit of the Lord, there is liberty. दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। When we are filled with the Spirit of God, the Lord brings us into a spacious place for us to enjoy spiritual life. जब हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो खुदा हमें ऐसे स्थान, चौड़े स्थान में लेके आता है जहां हम आत्मिक जीवन को जिए आनंद के साथ। Not only that, in Ephesians 2:6,
The Bible says God has raised us with Christ and seated us with Him in heavenly realms. इफिसियों 2:6 और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। This is the broad place we have in Christ. यही तो वो चौड़ा स्थान यीशु मसीह में हमारे लिए है। This is a place of honor. यह तो आदर का स्थान है। How much the Lord honors us by making us sit with Christ in heavenly places. और स्वर्गीय स्थानों में बैठाकर परमेश्वर हमें किस रूप से देखिए आदर देते हैं। When we have the Spirit of God within us, we will be surely rewarded. जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, हम निश्चय प्रतिफल पाएंगे। The Lord will bring us out into a spacious place to live with Christ. परमेश्वर हमें निकालकर चौड़े स्थान में लेके जाएंगे ताकि हम यीशु के साथ जिएं। Lord Jesus, those who are watching this program, may the Spirit of the Lord come upon your people, Lord. प्रभु यीशु जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी आत्मा आपके लोगों के अंदर आ जाए। They may be also crying like David, saying, I have strong enemies. हो सकता है वह भी आज दाऊद की तरह पुकार रहे हैं, मेरे शत्रु बलवंत है, Many hate me. बहुत मुझसे घृणा करते हैं। Lord, where can I go? परमेश्वर मैं कहाँ जाऊं? Bring them out into a spacious place, oh God. परमेश्वर उन्हें चौड़े स्थान में लेकर आए। That is, make them sit in heavenly places with you, oh God. और आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में उन्हें बैठाएं। Fill them with your Spirit. आपकी आत्मा से भर दे। Fill them with yourself, oh God. अपने आप से उन्हें भर दे। Let the anointing come upon all those who are watching this program. जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका अभिषेक उन पर आए। Fill them without measure, oh God. बिना माप के उन्हें भर दे। Take away the fear of their enemies. दुश्मनों के भय को दूर कर दे। The fear of the future. भविष्य कब है? Bring them out, Lord. उन्हें बाहर निकाले। Bring them out and rescue them from their enemies. दुश्मनों से छुड़ाए और उन्हें बाहर निकाले। Those who are oppressed by the evil spirit, bring them out of it, जो Lord. दुष्ट आत्माओं से सताए हुए हैं, परमेश्वर उन्हें बाहर निकाले। Lord, Father, chase all the evil spirits that are making them put down. हर एक दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाले जो उन्हें नीचे गिराती है। Father, Lord, remove all the evil spirits from their lives, पिता Lord. परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्मा को बाहर निकाले। Bring them into a place of honor. उन्हें आदर के स्थान में लेकर आए। Make them be seated with Christ yourself. परमेश्वर उन्हें यीशु मसीह के साथ बिठाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, dear friends. परमेश्वर आपको आशीषित करे दोस्तों। Enjoy the presence of God. Enjoy Christ who is in you, dear friend. परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले, उस यीशु का जो आपके भीतर है। Even now, I invite you all to the Jesus Calls Prayer Tower. और आज भी अभी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ यीशु बुलाता प्रार्थना भवन में। Wherever you are living, please go and visit our prayer tower, which is full of the presence of God. जहाँ कहीं भी आप हैं, यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में जाएं, जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है। Our prayer intercessors are waiting to pray for you. हमारे प्रार्थना मध्यस्थ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं प्रार्थना करने के May लिए। the Lord give you a place of honor to sit with Christ. परमेश्वर आपको आदर दे कि आप यीशु मसीह के साथ बिठाए जाएं। God bless you. परमेश्वर आशीष दे। इस मौके को मिस ना करें। ತವರ ಬಿಡೋದಿರ್ಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ನಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದು मिस చేయకండి। हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए। Your sorrow will turn into joy. बेत्सदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. बिग बॉल वाज देयर। Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th
13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord, there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेथसेदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए।